الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. استنبول میں نئی تاریخ رقم ہو گئی. تاریخی مسجد آیا صوفیہ دوبارہ مسلمانوں کی عبادت گاہ بن گئی. مسجد نے 86 برس بعد اللہ اکبر کی صدائے بلند. امام مسجد نے سلطان محمد فاتح کی تلوار ہاتھ میں پکڑ کر جمعے کا خطبہ دیا. نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پورا شہر امڑ آیا. آیا صوفیہ کے ارد گرد کی تمام گلیاں، بازار اور سڑکیں نمازیوں سے بھر گئیں. ترک صدر طیب ایردوان، کابینہ ارکان اور خواتین کی بڑی تعداد نے بھی تاریخی مسجد میں نماز ادا کی. شہریوں نے کورونا احتیاطی تدابیر کا بھی خاص خیال رکھا. تاریخی موقع پر ترک صدر رجب طیب ایردوان نے تلاوت قرآن بھی کی. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. کے الیکٹرک صرف پیسے بنا رہا ہے. کے الیکٹرک کا لائسنس معطل ہونا چاہیے. سندھ ہائی کورٹ کے الیکٹرک انتظامیہ اور وکلاء پر برہم. بجلی کمپنی کے وکیل سے پوچھا کہ بجلی چوروں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی. وکیل نے بتایا کہ زیادہ تر علاقوں سے کنڈے ہٹا دیے ہیں. بعض علاقوں میں لوگ دوبارہ کنڈے لگا لیتے ہیں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ لوگوں کے بار بار کنڈے لگانے کا مطلب ہے کہ انتظامیہ ناکارہ ہے. عدالت کا کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا حکم. 25 اگست کو کے الیکٹرک سے پیش رفت رپورٹ طلب. شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا. چینی کی قیمت نے شہریوں کے منہ کا ذائقہ کڑوا کر دیا. ایک ہفتے میں 2 روپے 52 پیسے فی کلو مہنگی ہو گئی. 87 روپے 84 پیسے فی کلو پر جا پہنچی. 20 کلو آٹے کے تھیلے پر 5 10 نہیں اکٹھے 34 روپے بڑھ گئے. آلو 64 روپے کلو پر پہنچ گیا. پیاز کی قیمت بھی 4 روپے فی کلو بڑھ گئی. سرخ مرچ، دودھ اور دہی بھی مہنگے ہو گئے. ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ نے مہنگائی میں اضافے کی داستان سنا دی. پنجاب میں چکی کا آٹا ایک ہفتے دوسری بار مہنگا ہو گیا. 1 کلو پر 2 روپے بڑھ گئے. 70 روپے کلو پر پہنچ گیا. نان 15 اور روٹی 10 روپے میں فروخت ہونے لگی. نان بائیوں کی ایسوسی ایشن نے مارکیٹ میں گندم کی بڑھتی قیمت کو جواز بنا لیا. کہا کہ آٹے کی قیمت کم نہ ہوئی تو قیمت اور بڑھ جائے گی. عید کے بعد ہڑتال کی بھی دھمکی دے دی. مہنگائی کے مارے شہریوں نے سر پکڑ لیے. کہا کہ روٹی کا نوالا بھی چھن گیا تو کیا مٹی کھائیں گے. یوسف رضا گیلانی نے اپنے دور حکومت میں 48 غیر ملکی دوروں پر 57 کروڑ 16 لاکھ روپے کا خرچہ کیا. راجہ پرویز اشرف نے 9 غیر ملکی دوروں پر 10 کروڑ 71 لاکھ روپے اور نواز شریف نے 92 غیر ملکی دوروں پر 1 ارب 80 کروڑ روپے سے زیادہ رقم خرچ کی. وزیر اعظم عمران خان کے 2018 میں 6 ممالک کے دوروں پر 4 کروڑ 56 لاکھ روپے کے اخراجات آئے. وزارت خارجہ نے 2008 سے 2018 تک وزرائے اعظم کے غیر ملکی دوروں کی تفصیلات سینیٹ میں پیش کر دی. وفاقی وزیر مراد سعید کا ماضی میں وزرائے اعظم کے غیر ملکی دوروں کی تحقیقات کا مطالبہ. قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا ماضی میں قوم کا پیسہ نجی دوروں پر لگایا گیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ان میں پیپلز پارٹی کے دور میں متحدہ عرب امارات کے نجی دورے بھی شامل ہیں. میرے بیٹے کو خراب جہاز پہ چڑھا دیا، جہاز خراب تھا اور یہ لوگ یہ رپورٹ نہیں مجھے دے رہے اور ادھر ادھر مجھے برق لا رہے ہیں اور کبھی کچھ، اور میں بہت دھکے کھا رہی ہوں. مجھے انصاف چاہیے.
2016 में PIA के तैयारा हादसे में शहीद पायलट अहमद मंजूर जंजुआ की वालदा सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। मीडिया से गुफ्तगू में आंखों में आंसू आ गए। कहा कि उनके बेटे को खराब जहाज दिया गया था, 4 साल से वो धक्के खा रही हैं, अब अदालत से इंसाफ चाहती हैं। पायलट्स के मशकूक लाइसेंसेस के मामले की सेनेट में भी गूंज। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि पायलट्स के लाइसेंस इम्तहानात में गैर शफाफ तरीकाकार इस्तेमाल किया गया। बात यहां नहीं रुकेगी, मंतकी अंजाम तक जाएगी। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि अगर वो वजीर होती तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देती। सेनेटर रजा रब्बानी ने सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि पायलट्स के जाली लाइसेंस के मसले से पहले यूरोपियन यूनियन सेफ्टी एजेंसी ने PIA फ्लाइट सेफ्टी निजाम का मसला उठाया था। सजा खत्म ICJ ने नहीं की, इस ऑर्डिनेंस ने कुलभूषण की सजा खत्म नहीं की। बुनियादी तौर पे ये NRO तो है नहीं। इंडिया ने तो ये तैयारी कर ली होगी कि जरा सा ये इधर उधर होते हैं, हम 2 काम करेंगे, ICJ में जाएंगे और सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे और दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम करें। और इस ऑर्डिनेंस के करने के बाद इंडिया के वो हाथ हमने काट दिए विद फाइनैलिटी। भारतीय जासूस कुलभूषण को NRO नहीं दिया, कुलभूषण की सजा भी खत्म नहीं की। तीसरी बार हल्फ उठाने के बाद वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम का कौमी असम्बली में ऐलान। कुलभूषण जाधव से मुतालिक ऑर्डिनेंस की वजाहत करते हुए कहा कि ये ऑर्डिनेंस NRO नहीं, NRO वो होता है जो परवेज मुशर्रफ ने दिया और सजाएं खत्म कर दी। अगर ऑर्डिनेंस न लाते तो भारत सलामती काउंसिल में जाकर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवा सकता था। ऑर्डिनेंस लाकर पाकिस्तान ने भारत के हाथ काट दिए। किसी पर कोई इल्जाम तराशी नहीं करना चाहते। ऑर्डिनेंस नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में भी जारी किए गए। ये कहीं नहीं लिखा कि ऑर्डिनेंस से पहले ऐवान को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर इत्तलात से नासिर शाह की विफाकी हुकूमत पर वार। कहा कि इत्तलात हैं कि तीसरी बार हल्फ उठाने वाले वज़ीर कानून को कुलभूषण का केस लड़ने के लिए फिर मुस्ताफी होना पड़ेगा। हम सेंध कार्ड नहीं, सेंध कॉज की बात कर रहे हैं। बिलावल गलत पॉलिसीज के खिलाफ बात करते हैं तो इनको आग लगती है। SOPs पर अमल करते हुए विफाकी नाअहली के खिलाफ एहतजाज करेंगे। कहा वज़ीर आज़म अपने मुतालिक सवालात का खुद जवाब दें। सियासी बोने और मस्खरे सामने लाए जाते हैं जो सिंध की अजीम सकाफत पर हमले करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को जिला बस्ती कराची का डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़ियाउर रहमान का ताल्लुक प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस खैबर पख्तूनख्वा से है। खिदमात सिंध हुकूमत के हवाले की गई थी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने कहा कि ज़ियाउर रहमान की तैनाती एक मुकम्मल इंतजामी मामला है। ज़ियाउर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतजामी ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पता नहीं किस कानून के तहत फजलुर रहमान के भाई को सिविल सर्विसेज में लाया गया। मौलाना के भाई टेस्ट और मेरिट के बगैर भर्ती हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑनलाइन गेम PUBG को फौरी बहाल करने का हुक्म। PTA का गेम पर पाबंदी का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने PUBG पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला सुना दिया। PTA को PUBG गेम फौरी खोलने का हुक्म। PTA ने शहरियों की शिकायत पर PUBG पर पाबंदी लगाई थी। पाकिस्तान में PUBG कंट्रोल करने वाली कंपनी ने PTA का फैसला चैलेंज किया था। ईद उल अजहा पर एहतियाती इकदाम पर अमल न किया गया तो पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों और अमवात की तादाद बढ़ सकती है। मरीजों की तादाद में रोजाना 1100 से 1200 तक इजाफा हो सकता है। अमवात 30 से 35 यौमिया तक जा सकती हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ पंजाब की डीन डॉक्टर जहर अफशां ने खबरदार कर दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि ईद पर लोग समाजी फासला रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और हाथों को साफ रखें। पाकिस्तान
पाकिस्तान रेलवेज 2 साल में शदीद माली बहरान का शिकार हो गया। 102 मुसाफिर ट्रेनें ताहाल बंद, मालगाड़ियों का पहिया भी रुकने लगा। 2018 में हद से 4 अरब रुपए से ज्यादा कमाई करने वाले रेलवे ने 2019 में 7 अरब रुपए कम कमाए, उल्टा 9 अरब रुपए का खसारा बढ़ गया। मुलाजमीन अपने वाजिबात के लिए दरबदर, आए रोज के ट्रेन हादसात भी कई जाने निकल गए। रेलवे हुकाम भी परेशान हो गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि किसी भी मामले पर समरी काबीना डिवीजन से ही भेजी जाती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा ऐसा तब होता है जब तहकीकात का फैसला मुतल्लिका वजारत ने किया हो। इस बार चीनी स्कैंडल की तहकीकात का फैसला वजीर आजम का था। वजीर आजम तहकीकात के अहकाम जारी करने का इख्तियार रखते हैं। ये एतराज दुरुस्त नहीं कि पहले कोई समरी भेजी जाना ही जरूरी थी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की भाराकहू में सहाफी मतीउल्लाह जान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सीनियर सहाफी के अगवा और तशद्दुद की मजम्मत, कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दौर में मीडिया की आज़ादी के लिए लड़ी है। जो सहाफी हुकूमत पर तनकीद करे उसे नौकरी से निकलवा देना अफसोसनाक है। हम जमहूरियत और प्रेस की आज़ादी पर ऐसे हमले कबूल नहीं करते। अगर आज ये मतीउल्लाह जान के साथ हो सकता है तो कल ये आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि वसाइल नजरअंदाज होने से बलूचिस्तान में एहसास महरूमी ने जन्म लिया। हुकूमत को इस एहसास महरूमी का इदराक है, इसे दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कौमी तरक्याती काउंसिल के इजलास से खिताब। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, विफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, मोहम्मद हमाद अजहर समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों, सियासी सूरत-ए-हाल और इत्तेहादी जमातों के साथ ताल्लुकात पर बातचीत। गुजरात में मादनियात के ठेकों में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ। महकमा एंटी करप्शन ने 2 निजी कंपनीज और ठेके देने वाले 3 सरकारी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक ठेकों की अलॉटमेंट में शफाफियत की खिलाफ वर्जियां की गई। ठेके लेने वाली दोनों कंपनीज के मालिकान के बासर सियासी घराने से करीबी ताल्लुकात हैं। चौधरी बरादरान के तर्जुमान का कहना है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है। नैब की लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट में कहा गया था कि चौधरी बरादरान ने बेनामी अकाउंट्स इस्तेमाल करके बैरून मुल्क से पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग की। सिंध हाई कोर्ट के जज कराची में कचरा, गंदगी और गलाजत की तस्वीर देखकर रंजीदा। शहर में गंदगी और कचरा न उठाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स दिए कि कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? डेप्यूटी सेक्रेटरी बल्दियात को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 54 जिंदगियां ले गया। जान से जाने वालों की तादाद 5763 हो गई। मजीद 1209 अफराद में वायरस की तस्दीक। 2,70,400 अफराद में से अब तक 2,19,783 सेहतियाब हो चुके। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी तसल्लुत और जुग्राफियाई हैसियत बदलने की कोशिशों के खिलाफ हड़ताल। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर एहतजाज और मुजाहरे। इंसानी हकूक की तंजीम काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 1 बरस से जारी लॉकडाउन के दौरान कश्मीर में इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जियां की गई। मकबूजा कश्मीर में काबिज इंतजामिया ने कोरोना वबा की आड़ में 29 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन नाफिज कर रखा है। बहुत नुकसान हुआ है। हमारे घर में काम नहीं चलते, इसलिए बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय लॉकडाउन ने लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल नामुमकिन बना दिया। कालीन बनाने वालों का मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया। पूरी इंडस्ट्री तबाही का शिकार हो गई। हजारों कालीन साज बेरोजगारी से तंग आकर मजदूरी करने लगे। सेनेट में कश्मीरी रहनुमा आसिया इंदरावी से इजहार एकजहती के लिए करारदाद मंजूर। करारदाद मुशाहिद हुसैन सैयद ने पेश की। करारदाद में आसिया इंदरावी की रिहाई का मुतालबा किया गया है। तिहाड़ जेल में कैद तन्हाई वार्ड में मुंतकिल करने की मजम्मत। करारदाद में कहा गया कि सेनेट आसिया इंदरावी को खिराज तहसीन पेश करती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि आसिया इंदरावी की तवील हिरासत इंतहाई तशवीशनाक है। ज़ईफ खातून की कैद भारतीय रियासती साम्राज्य ज़हनियत की अक्कास है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मलिका कौसार मरी की तरक्की के लिए नए मंसूबों का ऐलान कर दिया। कहा कि रिहायशियों के लिए पानी की फराहमी बेहतर बनाएंगे। कौसार यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। NCOC की मंजूरी के बाद सयाहती मकामात और रेस्टोरेंट्स को SOPs के मुताबिक खोला जाएगा। पंजाब असेंबली के इजलास में तालीम पर बहस के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। वजीर तालीम की तकरीर के दौरान एजेंडा की कॉपीज फाड़ दी। ऐवान में नारे लगाए। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ भी पंजाब असेंबली में मौजूद थे। पेशावर BRT मंसूबे में काम करने वाले मजदूरों ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर BRT कॉरिडोर बंद कर दिया। मुजाहिरीन की BRT इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मलेशिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ग्राउंड किए गए तमाम 18 पाकिस्तानी पायलट्स को बहाल कर दिया। रवा माह के आगाज में मलेशिया ने पाकिस्तानी लाइसेंस रखने वाले पायलट्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी गर्म मौसम का राज। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकंडी और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और सिबी में 43 डिग्री रहा। कराची में कल हल्की बारिश का इम्कान। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री रहा। इस्लामाबाद 37, लाहौर 36, पेशावर 40, कोयटा का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जम्मू में 23, श्रीनगर में 14 और लेह में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 133 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कोरोना वायरस दुनिया भर में 6,37,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में मरीजों की तादाद 41,70,000 से ज्यादा हो गई। 8 जुलाई से अब तक 10 लाख अफराद में वायरस की तस्दीक। मेक्सिको में एक रोज में 8,000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए। भारत में 24 घंटों के दौरान 49,000 से ज्यादा अफराद वायरस में मुब्तला। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हांगकांग और टोक्यो में कोरोना के दोबारा जोर पकड़ने पर पाबंदियों में मजीद सख्ती। दुनिया भर में 1,57 लाख के करीब मरीजों में से 96 लाख के करीब सेहतयाब हो चुके। यूरोप में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर आलमी इदारे सेहत का इजहार तशवीश। यूरोपियन ममालिक को पाबंदियां सख्त करने का मशवरा दे दिया। कहा कि यूरोप में मरीजों की तादाद 30 लाख से ऊपर जा चुकी है। यूरोप अम्मात के लिहाज से भी सबसे ज्यादा मुतासिर है। ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद करने के अमरीकी इकदाम के बाद चीन का रद्द-ए-अमल। चीन ने जनूब मगरबी शहर शैंगडो में अमरीकी कौंसुलेट बंद करने का हुक्म दे दिया। चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका है। मौजूदा सूरत हाल वो नहीं जो चीन देखना चाहता है। अमरीका ने 21 जुलाई को ह्यूस्टन में चीनी कौंसुलेट बंद करने का हुक्म दिया था। In using that language in front of the press, he gave permission to use that language against his wife, his daughters, women in his community. And I am here to stand up to say that is not acceptable. अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की डेमोक्रेट रुकन एलेक्जेंड्रिया ने रिपब्लिकन रुकन को खरी खरी सुना दी। कहा कि टेड योहो ने
उन्हें रिपोर्टरों के सामने गालियां दी, अब माफी मांग रहे हैं। इनका रवैया काबिल कबूल नहीं। घरों से निकलने वाली, रेस्टोरेंट्स में अपनी बारी का इंतजार करने वाली खवातीन को रोजाना ऐसे गंदे तबसरों का सामना करना पड़ता है। कोरोना की वबा के बायस वर्ल्ड T20 और एशिया कप मुलतवी, लेकिन भारतीय बोर्ड IPL कराने के लिए बेताब। भारतीय मीडिया ने IPL 2020 का आगाज 19 सितंबर से होने का दावा कर दिया। चेयरमैन IPL ब्रजेश पटेल के मुताबिक इवेंट का फाइनल 8 नवंबर को खेला जाएगा। राजनपुर के बकरे जिनके नखरे हैं वखरे, दराज कद, चौड़ा सीना, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। सरगोदा की मंडी में भी 10 मन के बैल की धूम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल अजहा के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। इधर एक नजर रूठ के जाने वाले, देख इधर एक नजर रूठ के जाने वाले, दे देंगे जान ओ जाने जा, चाहे कभी आजमा ले। रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। और 70 की दहाई के सुपरस्टार अदाकार शाहिद के कई किरदार यादगार, सालगिरह नहीं भूले उनके परिस्तार।